चलो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। In what ways Marx and Weber's theories of class at odds with each other? To what extent can they be seen as complementary? तो क्या लिखोगे सर इसमें? स्क्रीन शायद फ्रीज है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर भी। तो इंट्रो में तो नॉर्मली कि बोथ ऑफ देम प्रोवाइडेड स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर अप्रोच। डायरेक्ट डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बना लेंगे। स्टार्टिंग में मार्क्स की जो अप्रोच है वो इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है। लाइक कार्ल पॉपर का नाम लिख के सीधा क्रिटिसिज्म से स्टार्ट कर सकते हैं कि, और वेबर का जो मॉडल है वो प्लूरल कॉजेलिटी है। फिर सेकंड पॉइंट डेफिनेशन दे सकते हैं दोनों की, कि वेबर के लिए क्लास इज मार्केट कंडीशन, मार्क्स के लिए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। फिर थर्ड में उनका डिफरेंस बता सकते हैं कि वेबर जो है वो बोलता है कि दो ही क्लासेस हैं, बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट। और वेबर ने चार क्लासेस दी थी: प्रॉपर्टीड अपर क्लास, वाइट कॉलर वर्कर्स, पेटी बुर्जुआ और मैनुअल वर्कर्स। फिर वेबर ने बोला था कि मिडिल क्लास जो है वो वैनिश हो जाएगी, और नहीं, मार्क्स ने बोला था मिडिल क्लास वुड वैनिश अवे, और वेबर ने बोला था कि मिडिल क्लास विल राइज। और फिर मार्क्स का रेवोल्यूशन लिख सकते हैं कि ये क्लास पोलराइजेशन होगा जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आएगा, और वेबर ने बोला था कि पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा और देयर विल बी नो क्लास एंटागोनिज्म। और कोई कुछ ऐड कर सकता है तो करो। Guys, should we move to the next one? सर शेयरिंग बंद Actually, कर दिया क्या आपने? अभी दिख रहा है क्या फोटो बीच में? Uh, it is yes, yes. The screen is visible, Sparsh. दिख If रहा you है क्या? want, I can share the screen. मतलब अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। हेलो स्पर्श, मैं शेयर कर दूं क्या स्क्रीन? हाँ मतलब वो साथ में नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन शेयर ठीक हो है। रही है। यस यस, I'll try to do this. अगर मेरा भी नहीं हुआ तो let's see. Oh, I don't think I can do that. Sorry.
इसके okay, sorry guys, sorry. I thought I could share the screen, but I think only admins can do that, I guess. नहीं, just a second, just a second. There is screen share. I'm very sorry, sorry. Okay, guys, is the screen available? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So we are doing Chandler's part, no? Yes, ma'am. ठीक है. We are done with this question now. I think Chandler's has covered all the areas here. Somebody wants to add anything here? Second part of the question, how they are related to each other, how to address that part. Marx and Weber's theories are at odds with each other, and to what extent they can be seen as complementary. Complementary में like both of them have discussed in the backdrop of emerging capitalism और second alienation वाला point लिख सकते हैं कि मतलब दोनों ने alienation का logic तो अलग दिया था but उसकी बात की थी कि emerge होगी वो. Right. और फिर एक बार देख लो मैम सेकंड पार्ट कैसे एड्रेस किया क्वेश्चन में आंसर में. ठीक है. So both Marx and Weber theories also contain some complementarity. So both believe that due to increase in capitalistic society, alienation will rise, your point, and Marx sees communism as a solution to it, while Weber talks of professional groups. Where Weber recognizes that in ascriptive societies like India, class status power often converge, and thus class remains as the only source of stratification. ठीक है. And Marx sees false class consciousness as the reason why the proletariat are not uniting in a revolution. ठीक है. हाँ, false class consciousness के वजह से, okay. And Weber also agrees that a united revolution is not developing, but attributes it to increasing desire to achieve middle class status. ठीक है. फिर Eric Olin Wright combined both Marxian and Weberian theory. He states that there are three dimensions of control over economic resources in modern capitalistic production, and this helps in identifying three classes: control over investment, control over physical means of production, control over labor power. The managerial class is in a contradictory class location, thus preventing unity and revolution. Both Marx and Weber saw social stratification as undesirable, but Weber did not see any way out. हाँ, इसमें सारे points covered हैं. Anybody wants to add anything to this? Think of some Indian examples or the current context, how to relate it to that. Okay. So here it says एक तो class it says that class status and power converge. So we can think of the political situation in India, वही ना कि class status and power तीनों converge होते हैं. इसमें वो पॉइंट लिख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे मिडिल क्लास श्रिंक हुआ था क्योंकि बहुत लोग वापस से बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए थे, तो मार्क्स को सपोर्ट करने के लिए वो वाला पॉइंट लिख सकते हैं कंटेम्परेरी. करेक्ट बिल्कुल सही. Also use, I think, Dalit capitalism in this. Can we use? Where will you put that point? I mean, supporting which point? वही convergence का like with respect to the status, like they are Dalits, they are among the lower strata of society, but with respect to class, they are capitalists, so they are the leading class, like that.
यहाँ पे आई थिंक what they're trying to say in this point is that is class status and power often converge. इसका मतलब क्या है? जिसके पास स्टेटस है उनके पास, सॉरी, जिसके पास क्लास है उनके पास स्टेटस भी है और पावर भी है. इन द सेंस इन वेस्टर्न सोसाइटीज दे माइट बी डिवॉइड ऑफ ईच अदर. जैसे जिनके पास स्टेटस है, लेट्स से clergy or noblemen might not always be having power and money. Like, you know, previously power used to be with the kings, status used to be with the clergy, and class was enjoyed by certain bourgeoisie people. So लेकिन यहाँ what they're trying, this is what I understood, correct me if I'm wrong. So Weber recognizes that in ascriptive societies like India, all the three converge and thus class remains as the only source of stratification. बाकी जगह पे ये सोर्सेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ मतलब ऑल थ्री कन्वर्ज एंड एक ही स्ट्रैटिफिकेशन बन गया है. तो इसका मीनिंग ये है कि you can say Dalits are devoid of class, status, and power. You know, they are devoid of that. You can say, but you cannot pick the example you had said, na, कि capitalist भी है and status. Okay, ma'am, I got your point. Yeah. इसमें आंध्रे पे थे कहीं पे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने कास्ट स्टेटस पावर बोला है ना वेबर का ही ट्रिनिटी मॉडल यूज करके. तो अगेन सपोर्ट करने के लिए अगर इंडियन थिंकर डालना है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी डिस्कस हो गया. हाँ तो हेलो, हाँ मैम, तो इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन में तो वही कि ये स्टेटमेंट तो कार्ल मार्क्स का है, उसने ये स्टेटमेंट दी थी. फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि लाइक रिलीजन कैसे ओपीएम की तरह बिहेव करता है. तो मतलब वो रिवॉर्ड्स प्रॉमिस करता है नेक्स्ट जनरेशन में, और सफरिंग एज अ वर्च्यू बोलता है वो. और फिर इसमें हम लोग जैसे इंडिया में कर्मा थ्योरी होती है कि यू विल गेट डिवाइन जस्टिस, तो हम उसकी बात कर सकते हैं कि इंडिया में वो कैसे द रिलीजन एज एन ओपीएम काम कर रहा है. बट इन रियलिटी कैपिटलिस्ट जो है वो रिलीजन को यूज कर रहे हैं और अपने प्रिविलेजेस को मतलब जस्टिफाई करते हैं उसके नाम पे. इसके लिए हम एस्टेट सिस्टम जो था कि वहाँ पे थ्री स्टेट्स होते थे और क्लर्जी सबसे डिवाइन वो था, उनकी बात कर सकते हैं. सेकंड, हम इसको दिखाने के लिए इंडिया में कास्ट सिस्टम की बात कर सकते हैं, जहाँ पे दलितों को थ्रू रिलीजन ही सप्रेस किया गया. और फिर रिलीजन मतलब फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है. और क्रिटिकली एनालाइज है तो इसको इसके क्रिटिक में हम वेबर की बात कर सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट टू ब्रिंग चेंज. जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में रिलीजन ने कैपिटलिज्म लाया. और आर के मर्टन का भी हम इसमें डाल सकते हैं कि नहीं, मर्टन का नहीं डाल सकते, इतना ही पॉइंट. और किसी के पास कुछ है तो बताओ. हम इसमें करंट कंटेक्स्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं कि हाउ ड्यूरिंग कोरोना दे न्यू मोड्स ऑफ रिलीजन लाइक ऑनलाइन टेलीविजन और इसके थ्रू लोग रिलीजन से कनेक्टेड थे. हाँ, कोरोना माता मंदिर वगैरह बना था, वो सब. इस स्टेटमेंट मैम का आपकी क्या मतलब आवाज हुआ? नहीं आ रही. Is it audible now? हाँ, यस मैम. हाँ, मैं कह रही थी यहाँ पे स्टेटमेंट में ये बोला है कि क्रिटिकली एनालाइज, मतलब वी हैव टू गिव पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एज वेल, है ना. जैसे फॉर religion unifies in certain cases.
क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं? देखो यहाँ पे ना इसमें दो पार्ट को डिस्कस किया इन्होंने, मतलब क्वेश्चन में। एक तो ओपीएम ऑफ मासेस तो है, बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लासेस भी है, ठीक है। तो दोनों को उसने कनेक्ट करके दिया है, तो अपने को कनेक्ट करते हुए ही थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो मैं मतलब थोड़ा फ्रेमवर्क सोच पा रहा हूँ, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार। एक तो जैसे उसने ओपीएम ऑफ मासेस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लासेस की बात की है, तो ये थोड़ा सा उसने कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव दिया है, ठीक है। तो मैं शुरुआत पहले थोड़ा पॉजिटिव, पहले तो भाई कंटेक्स्ट दे दो कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है, कि ओपीएम ऑफ मासेस क्यों है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है ऊपर बैठा हुआ है हायरार्की में, जो नीचे वालों को सबड्यू कर रहा है रिलीजन के नाम पे। तो यहाँ पे अपन जो पूरा जो सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ था, वहां से थोड़ा सा एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं कि कैसे चर्च ने डोमिनेट किया था, है ना, रिलीजन को यूज करते हुए एक पावर ले ली थी और एक अलग ही क्लास बन गई थी, ठीक है। फिर इंडियन कंटेक्स्ट में भी अपन ये जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा इशू है वो भी डाल सकते हैं, जो हुआ था ना ये राइट्स वगैरह, उसको भी कंटेक्स्ट में डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एक सॉर्ट ऑफ रिलीजन के नाम पे और भी, मतलब एप्लीकेशन बेस में मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। रिलीजन के नाम पे हम लोग आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज भी रिलीजन को यूज करती है ना। तो बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ वो लिख सकते हैं कि भाई कैसे मासेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है वोट के लिए, है ना। और एक अलग ही क्लास निकल के आ रही है, पॉलिटिकल क्लास, क्योंकि उनको भले वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो डजेंट मैटर, ठीक है। राइट। इससे वो भी कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास में सही सर ने सही कहा, पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दो फिर नेगेटिव। तो इंस्ट्रूमेंट क्लास में ये भी डाल सकते हैं कि जो ये क्लासेस है ना, जो हायर क्लासेस है, वो अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए रिलीजन को यूज करते हैं और एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं लोअर क्लास के अंदर। राइट। फिर आज की डेट में क्या है, एक और एस्पेक्ट है कि भाई जैसे वहां पर रिलीजन की बात की है, बट रिलीजन तो उसने ऐसा कंटेक्स्ट डिफाइन करके नहीं दिया ना कि रिलीजन सिर्फ मैं भगवान की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न रिलीजन की भी बात कर सकते हो, जिसमें साइंस इज द न्यू रिलीजन, है ना। तो उसमें साइंस की वजह से भी एक अलग ही क्लास निकल के आ रही है, ठीक है। तो वो भी एक चीज है, साइंस के बेसिस पे कैसे थोड़ा सेग्रीगेशन आ रहा है क्लासेस में। हाँ, लाइक यू सेड, हुएवर किसी जिसका कॉपी है ये, इन्होंने सही सही हिट किया है कि क्रिटिक में वो दे हैव राइटली पुट वेबर हियर। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स के वजह से कैपिटलिज्म मतलब वेल्थ क्रिएशन हुआ है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। एंड इवन इन यूएसएसआर which established communism, a state actively discouraged religion. Religion did not die out completely. ये भी सही है। एंड लाइक अनदर साइंस इज अ न्यू रिलीजन, किसी ने एग्जाम्पल दिया है, तो एक सच में एक रिलीजन है विच इज साइंटोलॉजी, है ना। टॉम क्रूज इज अ फॉलोअर ऑफ साइंटोलॉजी, तो वो भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, एक चीज है, क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव भी होता है। तो एक पॉइंट आप पॉजिटिव में लिखो, अगर जैसे किसी ने कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मार्क्स का है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई आया था क्या, ठीक है। जैसे क्रिटिसिज्म में मार्क्स तो कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव दे रहा है, तो उसका नेगेटिव अपोजिट पॉइंट तो अपना फंक्शनलिस्ट वाला हो जाएगा कि वह रिलीजन आइडेंटिटी देता है इंडिविजुअल को टाइप से, है ना। एक सॉर्ट ऑफ क्लास तो बना ही रहा है, बट आइडेंटिटी देते हुए बना रहा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो डाल सकते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स को किसी ने सपोर्ट किया होगा, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस कार्ल मार्क्स के लिए पॉजिटिव, कि भाई कार्ल मार्क्स को कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट को, क्वेश्चन में जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उसे। राइट। तो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट याद आ रहा है? इसको यूज कर सकते हैं ना, नियो मार्क्सिस्ट हमारे अल्थ्यूजर, तो उन लोगों ने रिलीजन को बताया था दिस इज अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस जो कि सप्रेस करता है, तो वो एक तरह से मार्क्स के थ्योरी का एक्सटेंशन था।
Right. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो फॉर मार्क्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नॉट ओनली हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल बट ऑल्सो इंक्रीजिंग एलियनेशन ऑफ मैन। तो इसमें अगर मुझे स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे जो मतलब स्टेट क्वेश्चन में दिया है या तो उसको ही रिपीट कर देता या तो फिर मार्क्स ने जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा था ना हिस्टोरिक मटेरियलिज्म के बारे में, तो उसके नाम से भी स्टार्ट कर सकते थे और हिस्टोरिक मटेरियलिज्म को कैसे वो डिफाइन करता है। फिर बॉडी पार्ट में तो वही एक्सप्लेन करेंगे कि द लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, और फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन होता है, रिलेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो डायग्राम है उसके 5 सोसाइटीज का, 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटी वो बना सकते हैं इसमें। और मतलब इसमें मुझे कुछ ऐसा इनोवेटिव नहीं मिला, खाली लास्ट में अपन वो बता सकते हैं इसमें कि ए आर देसाई ने हिस्टोरिक मटेरियलिज्म यूज करके इंडिया में जो चेंज हुआ था वो बताया था, या तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में बता सकते हैं कि कैसे हिस्टोरिक कंडीशन चेंज हुई ना, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हरियाणा पंजाब वाला जो रीजन था तो वहाँ पे कैसे चेंजेस आए सोसाइटी में, हिस्टोरिक मटेरियलिज्म यूज करके वो चीज़ बता सकते हैं। और बीच में कहीं पे स्टोरी वो जो उसकी है पूरी की, स्टार्टिंग में मैन वॉज एलियनेटेड फ्रॉम नेचर, फिर बाद में उसने टेक्नोलॉजी से उस एलियनेशन को ओवरकम किया, और उसके बाद उसके 4 टाइप के जो एलियनेशन है वो लिख सकते थे। इसमें जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नॉट ओनली क्लास स्ट्रगल, तो क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ था उसके अकॉर्डिंग, जब वो कैपिटलिज्म शुरू हुआ था तो उसमें हम ऐसे हिट कर सकते हैं कि जब अकॉर्डिंग टू मार्क्स जब कैपिटलिज्म शुरू हुआ तो क्लास स्ट्रगल के साथ साथ कुछ ऐसे उसके डीह्यूमनाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, लाइक एलियनेशन। तो फिर वो उसने एलियनेशन को एक्सप्लेन कर देंगे कि वो प्रोसेस होता है फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर उससे आगे बढ़ना चाहिए आई थिंक। फिर उसमें 2 चीज़ हो जाएंगी कि वो क्यों बोल रहा था ऐसा, कि क्लास स्ट्रगल भी और एलियनेशन भी, तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस ही कैपिटलिज्म के थे, तो ऐसे करके हिट कर सकते थे। हाँ ठीक है। अरे एक्चुअल में तो मार्क्स ने स्टार्टिंग से बोला था ना, कैपिटलिज्म जब राइज हुआ तब तो एलियनेशन उसके 4 फॉर्म्स में है, उसके पहले भी उसने बोला था कि मैन वाज एलियनेटेड फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और जब कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ तब वो खुद से मतलब मैन स्टार्टेड गेटिंग एलियनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ, वो वाला पार्ट तब से आता है ना जो आप बोल रहे हो। ठीक है, इनका आंसर देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने। मैम अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही। I think my voice is not proper. Can somebody read the answer? हाँ ठीक है, go on. So Karl Marx sees the history of mankind as a history of class struggle and alienation. So he proposes historical materialism based on the laws of dialectics. तो पहला उसने बताया the law of unity and conflict of opposite. The universal is one whole. The economic substructure determines the various superstructures like politics, religion, family. However, contradictions are present in the system.
which themselves lead to conflict. He sees relation with the forces of production on the basis of conflict. फिर दूसरा पॉइंट डाला negation of negation. Every new stage of history is a negation of the previous stage mode of production. Thus, slave society was a negation of the primitive communism, but feudalism is a negation of slave society and so on. ये अच्छा पॉइंट था. फिर थोड़ा सा नीचे. हाँ, नहीं इतना ही है. अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर में आएगा, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा. हाँ. फिर इन्होंने ये मोड ऑफ प्रोडक्शंस बता दिए कैसे कैसे चेंज हुआ है. ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, नेगेशन ऑफ नेगेशन. फिर इसमें इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी. तो quantitative changes keep on happening due to conflict of opposites. These changes will lead to leap qualitative, which will be a revolutionary change. However, these stages of class struggle also lead to increasing alienation of men. So, there are 4 alienation in the current mode of production. तो उनके नाम बता रखे कि alienation के 4 types. तो alienation from process of production, alienation from the product, शेयर बंद हो गया मैम. Guys, am I audible now? हाँ. यस मैम. हाँ, स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? हाँ मैम. ठीक है. तो मतलब मेन यही था इसमें क्वेश्चन में कि पहले उन्होंने क्लास स्ट्रगल को डिफाइन कर दिया, वो 4 स्टेजेस डिफाइन कर दी और बता दिया कैसे कैसे चेंज हुआ है. फिर उन्होंने एलियनेशन को डिफाइन कर दिया सेकंड में, और दोनों पार्ट्स डिफाइन कर दिए. ठीक है, चलते आगे. मेरे को एक डाउट था इसमें. इन्होंने जो टर्म्स यूज किए हैं लाइक लॉ ऑफ यूनिटी, कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स, निगेशन ऑफ निगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, सो आर दी स्टैंडर्ड टर्म्स? मतलब ये मेरे को बुक दिखा नहीं किसी बुक में, नितिन सांगवान या फिर हाँ, ये विकास रंजन. हिस्टोरिक मटेरियलिज्म के सब स्टैंडर्ड टर्म्स हैं. अच्छा, ओके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा. वो लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स होते हैं ना, उसके वो 3 पॉइंट्स डाल लेते हैं. हाँ मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बट रीड क्वेश्चन. दिख नहीं रहा है क्वेश्चन को. Guys, I think there's a problem with the screen sharing. अच्छा, एक मिनट. Is it visible मैं now? ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, स्क्रीन हाँ शेयरिंग की मैम, जरूरत नहीं है ना, वी ऑल हैव द क्वेश्चंस, तो ऐसे ही डिस्कस कर हाँ लेंगे. वही, बस ऐसे ही रीड कर लेते हैं. मैं भी वही बोल रहा था. ठीक है, ठीक है. इजीली अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना ऐसे ही देख लेते हैं. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. उसमें मार्क्स और दरखाइम का डिफरेंस पूछा है कि इन लोग का डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंट कैसे है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिख देंगे कि मार्क्स का कॉन्फ्लिक्टिस्ट पर्सपेक्टिव है और दरखाइम का फंक्शनलिस्ट है. सेकंड में मार्क्स बोलता है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो फोर्स्ड अपॉन वर्किंग क्लास है और वो एक्सप्लॉयटेशन है. और दरखाइम बोलेगा कि मतलब वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी फॉर्म करता है. इसमें हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे जो यूएस की सोसाइटी है वहाँ पे वॉल्यूम, मटेरियल और मोरल डेंसिटी तीनों राइज की,
और वहाँ पे मतलब डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा है, तो वहाँ पे अभी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। और अगर हम वेस्ट एशिया मतलब जो मिडल ईस्ट है वहाँ की बात करें, या फिर इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे बंगाल की बात करें, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम, मटेरियल डेंसिटी, मोरल डेंसिटी राइज की, पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था प्रॉपर, तो इसके लिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अ, उसके बाद ये एग्जांपल हो गया। फिर नेचर और डिवीजन ऑफ लेबर फंक्शनली, दरखाइम बोलेगा कि इट लीड्स टू कॉर्पोरेशन, मार्क्स बोलेगा इट इज अनइक्वल और कम्युनिस्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा डिवीजन ऑफ लेबर। और कॉन्सिक्वेंसेज में बोल सकते हैं, दरखाइम बोलेगा कि इट इज मतलब वो इंटीग्रेट करता है सोसाइटी को, और फॉर मार्क्स इट इज डीह्यूमनाइजेशन। एंड सोल्यूशन के लिए दरखाइम बोलेगा कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, और मार्क्स के लिए रिवोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। और कोई कुछ ऐड कर सकते हैं तो बताओ। सही है, ये डायरेक्ट ही लिखना था, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट किसका है। धर के हम लोग आज स्किप कर रहे हैं ना, फिर वेबर देख लेते हैं। इसमें एक और बचा है ना, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म करके एक क्वेश्चन बचा है। हो गया मैम, वो आपने पहले ही ले लिया था आई थिंक। अच्छा, ठीक है। डरखिम इफ वी वांट, मतलब ऐसे ही आंसर शीट से डिस्कस कर ले क्या? सॉरी गाइस, आई एम अनेबल टू ऐड एनीथिंग टुडे बिकॉज आई कुड नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन थिंकर्स, मतलब आई डिड नॉट प्रिपेयर एंड कम। कल प्रिपेयर करके आऊंगी एंड बट ऐसे ही लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग, मतलब डरखिम फिनिश कर ले क्या? वी कैन सी द आंसर्स एटलीस्ट। हाँ, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हाँ, first question is write a short note on each of the following. Okay. How Durkheim's idea of sacred and profane be used to understand the contemporary society. तो इसमें हाँ, so we know this book, Elementary Forms of Religious Life. Durkheim argued that all societies divide the world into two categories, sacred and profane. So religion is based upon this division. It is unified a system of beliefs and practices related to sacred things, things that are set apart and forbidden. फिर profane are mundane, day-to-day things, anything that is not sacred and profane. Then anything that is not sacred is profane. फिर Durkheim saw religion as worship of society. फिर sacred and rituals and forms of collective worship associated with it act as a means to unify the group and promote social solidarity. So uh, he saw religion as a worship of society, and it promotes solidarity, and it helps reinforce the collective conscience. And in modern society, we see a secular religion emerging. And yeah, guys, I think it will be me reading. I'll do it tomorrow itself. वेबर ही कर लेते हैं। सॉरी सॉरी गाइस। Guys, we can go to Weber. हाँ, बस वेबर पे आपके चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था वो रेक्रेशनल एक्शन से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेबर कंसेप्शन ऑफ रेक्रेशनल एक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन वर्ल्ड टुडे। तो इसमें क्या करेंगे हम पहले?
आप होते तो क्या करते हो? पहले बता दो कोई अप्रोच। ठीक है, तो क्या मतलब पहले इसमें रेक्रिएशनल पूछा है, तो हम बता देंगे कि वेबर ने एक सोशल एक्शन का एक कंसेप्ट दिया था, उसमें से एक पार्ट है रेक्रिएशनल एक्शन। तो जो वेबर का जो सोशल एक्शन का जो चीज़ था वो डिपेंडेंट था सब्जेक्टिव ओपिनियन पे। मतलब कुछ कोई भी एक्शन होगा तो उस पर कुछ सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच होगा। तो उसने उसके 4 टाइप्स दिए थे। टॉज करके याद रख लेना, TAWZ, ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, रेक्रेशनल और वर्टरेशनल। ठीक है, तो फिर हम उसमें रेक्रेशनल को डिफाइन करेंगे कि रेक्रेशनल एक वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन है, तो जिसमें वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कोई एग्जांपल बताएगा क्या उसका, क्या होता है रेक्रेशनल का? आवाज़ आ रही है क्या? You're saying word rational, ना? ज्वैक रैशनल बोल रहे हो ना? ज्वैक क्या है? विच आर मीन्स ओरिएंटेड बेस्ड ऑन रिटन रूल्स एंड लॉज, है ना? मतलब जो हाँ। एक्शंस प्लान्ड होते हैं। तो एग्जांपल क्या आएंगे? वर्ड रैशनल में पूछ रहा था मैं, सॉरी। अच्छा, वर्ड पूछ रहे हो क्या? वर्ड वाला भी आई थिंक सिमिलर ही होता है, बट जो वर्ड रैशनल होता है वो होता है वैल्यू ओरिएंटेड, मतलब मीन्स हाँ, बट अच्छा यहाँ पे होना थोड़ा चाहिए। वैल्यूज वाली बात आ जाती है। हाँ, मीन्स ओरिएंटेड है ना ये थोड़ा। ज़ैक रेशनल में एंड्स ओरिएंटेड होता है। ज़ैक में कि एंड मतलब गोल अच्छा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड एक्शन होता है वो। तो दोनों के एग्जांपल क्या क्या होंगे? वर्ड क्वेश्चन का एक एग्जांपल ये हो सकता है ना कि अगर हमारी वैल्यूज है कि हमें मतलब हम हर किसी में, अगर हम काइंडनेस वैल्यूज हैं और टू हेल्प द सोसाइटी ह्यूमैनिज्म की अगर वैल्यूज हैं तो हम चैरिटी करेंगे या फिर जो ओल्ड है या पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर जैसे करेक्ट है। पेट्रियोटिज्म वगैरह की फीलिंग है सोसाइटी में, नेशनलिज्म की फीलिंग है ज्यादा, तो ज्यादा लोग होंगे जो कि आर्मी में और सोल्जर्स बनने के लिए प्रिपेयर करेंगे और उसमें आर्मी ज्वाइन करेंगे। मतलब वही ऐसे हेल्पिंग द पुअर, या किसी ने ब्राइब को रिजेक्ट कर दिया तो वो भी उसमें आएगा। एक मैम ने एग्जांपल डाला है ग्रुप में कि गांधी ने भी जो इंडिपेंडेंस अचीव किया था थ्रू सत्याग्रह, तो उसका मीन्स अच्छा था। तो इसमें एंड्स क्लियर नहीं होते क्या होंगे, तो बस मीन्स पता होना चाहिए, मीन्स क्या है हमारा। तो अच्छा, अभी ये उसने, किसका किसका बोल रहे हो? तो वर्ड का बोल रहे हो ना आप लोग? हाँ, वर्ड रेशनल। वर्ड में ऐसा था कि मीन्स जो होता है, मीन्स तो रिटर्न रूल्स पे ही होता है, बट एंड्स जो होता है वैल्यू बेस्ड होता है। ये मैंने इसमें पढ़ा था वर्ड रैशनल में। और जो ज्वै और एक जो ज्वैक रैशनल होता है ना, वहां पे भी मीन्स जो होता है वो रिटर्न रूल्स लॉस पे ही होता है, बट जो एंड होता है वहां पे आउटकम ओरिएंटेड होता है, इट इज नॉट वैल्यू बेस्ड। हाँ सर, राइट। सो बेसिकली दोनों में ही हम एंड गोल पर ही, एंड गोल ही हमारा मेन है, लेकिन इसमें बस जो वर्ड रैशनल है उसमें जो एंड है दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो डिफरेंस तो यही हो गया ना, जैसे जो रेट रेशनल है उसमें मीन्स होगा अच्छा, जैसे वो मैम ने बताया सत्याग्रह वाला।
जैसे ये है ना यूपीएससी प्रिपरेशन मैम ने डाला है, तो ये ज़्वैक रेशनल के अंडर आएगा, क्योंकि इसमें हमें गोल हमारा चाहिए। इसमें मीन्स कैसा भी, मतलब मीन्स कैसा भी ना हो, लेकिन लेजिटिमेट होना चाहिए, और लेकिन वो होना चाहिए जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब किसी का कोई तरीका होगा, किसी का कोई, लेकिन हमारा गोल है क्लियर करना, तो वो ज़्वैक में आ जाएगा। और इसमें हमें एंड, मतलब जो हमारा एंड है वो ज़्यादा अचीव करने के ऊपर ध्यान देना है। नहीं सर, इसमें ना एक्चुअली में ये है कि जो हमने गोल ही डिसाइड किया है ना, वो हमने डिसाइड किया है जो ज़्वैक रैशनल है उसमें हम जो गोल डिफाइन कर रहे हैं दैट इज बेस्ड अपॉन कि हम हमारा जो बेसिस है गोल का वो ये है कि हमें कोई हमें कोई फाइनल रिजल्ट हमने चाहिए, उसके लिए हम गोल डिफाइन कर रहे हैं रैशनली। हाँ, और जैसे मैं वर्ड रैशनल में एग्जांपल जो दूं हम क्या? सोशल एक्शन में जो गोल डिफाइन कर रहे हैं वो हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमारा जो एंड गोल है वो ही ऐसा है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है या पुअर के लिए कुछ करना है या फिर किसी को हेल्प करना है या फिर हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो गोल है वो ये है कि हम किसी तरह कंट्री को सर्व कर पाए, तो हम आर्मी में जाके सर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो गोल है, एंड गोल है कि आर्मी में हम सर्व करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू। तो वैल्यू देखो, बेस्ड हमारा गोल डिसाइड किया हमने, ये डिफरेंस है दोनों में। ज्वैक और वर्ट में बिल्कुल अपोजिट होता है, समझ रहे हो? जब आप ज्वैक की बात कर रहे होते हो तो जो आपके जो मीन्स है, ठीक है, वो तो एक्टर प्रिफर करेगा। एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या मीन्स लेना है, ठीक है, वो कुछ भी मीन उठा सकता है ज्वैक में। बट जो एंड है ना, दैट शुड बी एज पर द रूल्स एंड लॉज, इट शुड बी आउटकम ओरिएंटेड, ठीक है। जैसे तुम जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट वाज ज्वैक रैशनल एक्शन, ठीक है। उसमें उसने मीन कुछ भी उठाया, बट उसका आउटकम क्या था कि भाई उसको उस चीज को रोकना है, ठीक है। ऑल मीन्स बहुत सारे थे, ठीक है, वो चाहता तो तरीके से भी रोक सकता था उस पूरे प्रोटेस्ट को, है ना, उसको गोलियां चलवाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट उसका आउटकम था रोकना, और उसने रोक दिया। बट उसका मीन पे उसने अपने हिसाब से मतलब चुना उस मीन को, ठीक है, तो वो ज्वैक रैशनल एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वर्ड रैशनल एक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो मीन है ना, वो एज पर द रिटन रूल्स एंड, मतलब एज पर द रिटन रूल्स ही होगा, बट जो तुम्हारा एंड है वो वैल्यू बेस्ड होगा। जैसे वर्ड रैशनल में एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे कोई एयरफोर्स का जो पायलट है, ठीक है, आ, तो वो बंदा, मैंने ये क्लास में एग्जांपल पढ़ा था, तो जब इमरजेंसी, मतलब वो फ्लाइट ले रहा है और जब इमरजेंसी का केस आ जाता है, ठीक है, ये जो वो क्या करता है, उसको ये दिया गया है एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कि भाई तुम्हें जहाँ पे भी पॉपुलेशन है वहां पे नहीं रहना है, आपको वहां से दूर जाके ही अपने प्लेन को क्रैश करना है, ठीक है, ताकि लोग हार्म ना हो। तो ये उसका रिटर्न रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना है एज अ मीन, ठीक है, तो वो उसे फॉलो भी करता है। और यहाँ पे एंड क्या होता है, वैल्यू बेस्ड होता है कि भाई लोग नहीं मरने चाहिए, ठीक है। हेलो। हाँ सर। लेट्स लेट्स से वो इस रिटर्न रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, लेट्स से वो इस रिटर्न रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ना वो उसका जो एक्शन है, ना वो वर्ड कहलाएगा, ज्वैग भी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वहां पे जो आउटकम है दैट शुड बी बेस्ड ऑन रिटर्न एंड रूल, रिटर्न रूल्स एंड लॉज, राइट, वो चीज है, तो ये चीज है। की केस में अगर वो ये करता है कि सपोज कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अगर मतलब अपनी लाइफ को सेव करना चाहता है, तो उसे बस ये कर सकता है वो मैक्सिमम कि खुद अपना एक पैराशूट लेके और लैंड कर जाए, और बाकी लोगों के बारे में ना सोचे कि वो कैसे क्या हम्म। होगा, कहाँ पर प्लेन लैंड होगा या कैसे भी कितने लोग मरेंगे। और अगर सपोज उसके लिए मतलब उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वक्त उसका जो गोल, उसका रैशनल जो डिसीजन है, मतलब जो उसका गोल है वो रैशनली बेस्ड है कि मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मुझे खुद को बचाना है। और सपोज वो पैराशूट लेके लैंड कर जाता है और वो एरोप्लेन को छोड़ देता है, सपोज उसमें आग वाग लग गई थी, तो वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता कि मैं कहाँ इसे लैंड करवाऊं या फिर कहाँ पे क्रैश करवाऊं, वो जस्ट छोड़ देता है प्लेन को। तो उसे हम जो रैशनल बोलेंगे ना, हाँ, क्योंकि मैं उसने समझ रहा अपनी हूँ जो यहाँ लाइफ लेकिन पे। सेव ये कर ली। एक जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट, मतलब ये काफी सब्जेक्टिव सिचुएशन है, आपको कंटेक्स्ट को पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि आप अगर कह रहे हो कि ज्वैक रैशनल एक्शन है,
तो ज़्वैक रैशनल एक्शन किसके पर्सपेक्टिव में, अगर वो जो पायलट है उसके पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हो चीजों को, या फिर आप एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तब अपन उस एक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओवरऑल ऐसे हैपेजार्ड हो जाएगी चीजें। और वो जो मैम ने एग्जांपल दिया ना वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आर्मी की वैल्यूज ही मतलब वो है सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, ऐसा तो वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। बाकी सही है, मतलब वही है कि मीन्स और एंड्स के बेसिस पे। तो अभी एग्जांपल्स जैसे नेवी वाला एग्जांपल आपको पता होगा, नेवी का जो कैप्टन होता है उसको एक सॉर्ट ऑफ एसओपी दिया होता है कि भाई जब भी शिप डूबने वाली है पहले पूरी बोट खाली करो फिर तुम जाओगे, है ना। ऐसे कभी नहीं होता है कि वो पहले ही कूद जाएगा और भाड़ में जाए, डूब जाए टाइटैनिक, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रखा है कि आपको एक मीन्स जो है आपके रिटर्न रूल्स और लॉज के ऊपर बेस्ड है, और आपके जो एंड्स है वो वैल्यू बेस्ड है। तो अगर वो इस चीज को फॉलो करता है जो रूल्स दे रखे हैं, तो ये पूरा जो चीज है सही हो रही है, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर वो उस रिटर्न रूल को फॉलो नहीं करता है, वो अपनी वैल्यूज को ज्यादा मतलब थोड़ा वो करता है, क्या बोलते हैं उसका, उसकी वैल्यू है मान लो भाई मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों से, तो वो थोड़ा ज़्वैक रैशनल एक्शन में आ जाएगा, फिर वो वर्ट नहीं कहलाएगा। बट वहां पे जो फाइनल आउटकम है वो उसने अचीव किया नहीं, राइट। उसका आउटकम ये था कि जान बचानी है, बट उसने अपनी जान बचाई है, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा, आई थिंक ये बिल्कुल टोटल ऑपोजिट होता है दोनों, ठीक है, ज़्वैक और वर्ट वाला। एक रैशनल में हम ये भी ले सकते हैं ना कि सपोज मतलब अगर हमारा ये गोल है कि हम एक कोई कंपनी बनाएंगे और वो हमें मतलब यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है सपोज, तो उसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि हम सबसे बेस्ट जो एक्सपर्टीज है जिन लोगों के पास उन लोगों को कंसिडर करें। बट क्योंकि अगर हम वैल्यू वाइज जाएं तो वैल्यू हमारी ये भी बोलती है कि हम उसमें सारे जो इंक्लूजन के तरफ देखें, सारी टाइप के लोगों को इन्वॉल्व करें, वुमेन को इंक्लूड करें, सबको इंक्लूड करें। पर अगर हम ज़्वैक रैशनल में केवल गोल ओरिएंटेड होंगे तो हम इतना ज्यादा इंक्लूजन पे वो नहीं करेंगे कंसिडरेशन। हम बस ये देखेंगे कि सपोज कि हमारी टीम में एक भी वुमेन ना हो या फिर एक भी कोई मतलब डिफरेंट उसका सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम कंसिडर ना भी करें, बट अगर सपोज एक पर्टिकुलर क्लास में ही हमें सारे लोग मिल जाए तो हम बस ये देखेंगे कि उनकी एक्सपर्टीज कैसी हैं और वो अगर बेस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, और हमें लगता है कि उनकी अगर हम टीम बना के और उस कंपनी को स्टार्ट करेंगे और हम बेस्ट मतलब आउटपुट दे सकते हैं तो हम उन लोगों को कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब वैल्यूज ऑफ इंक्लूजन और ये सब हटा रहे हैं लेकिन हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं। सही है, लेकिन आप इस एग्जांपल को एक लाइन में कैसे लिखोगे? यही ना कि MNC गिव प्रेफरेंस टू द बेस्ट meritocratic and best talented student, dislodging the principle of inclusion. हाँ सही है, एग्जांपल तो डाल ही सकते हैं कुछ भी। इसका जो इनका सेकंड, आंसर देख, मैंने जो लिखा है। हाँ इनका आंसर देख लेते हैं। तो इन्होंने वही किया, मतलब पहले क्या वो वेबर का बताया है कि उसके बाद तीन चार आप स्क्रीन शेयर करेंगे? कर सकते हो क्या आप सर? हाँ ट्राई करते हैं। हाँ कर दो। विजिबल है सबको? हाँ हाँ। हाँ तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है ना कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज के दिन में रेट रेशनल एक्शन की, तो वो एक्सप्लेन कर दो कोई एक लाइन में बस। इसमें ये लिख सकते हैं ना कि जो ज़्वैक रैशनल के लिए पूछ रहे हैं आप, वर्ड रैशनल के लिए पूछ रहे हैं? हाँ मतलब ये वर्ड रैशनल जो इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना। हाँ, तो वर्ड रैशनल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज for maintaining the solidarity and stability in the society, it is essential that we have collective conscience and collective values, and these are respected by different members. So our goal should be based on consensus values.
otherwise there may be chances of conflict and division in the society. इसका इम्पोर्टेंस बताओ, मतलब आज के दिन में ये जो इसने एक्शन उस टाइम पे बताया था, आज इस पे कैसे मतलब आप यूज करोगे आज की सोसाइटी में? तो ये लिख सकते हैं कि सोसाइटी के till there are some values which are collectively मतलब collectively followed by whole society, and they work based on those values, and that helps in maintaining solidarity in the society. Like ये जो भी हम रिलीजन के रिचुअल्स वगैरह करते हैं, इसके वजह से क्या होता है, मेनली तो यही होता है ना कि हम फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी फील करते हैं। अब अगर हम कहीं भी रिलीजन कोई भी रिलीजियस रिचुअल कर रहे हैं, तो उसका कुछ गोल आए ना आए, कोई और चीज हो ना हो, बट ये है कि जब हम वो चीज साथ में करते हैं तो हम सेंस ऑफ सॉलिडारिटी फील करते हैं अमंग द ग्रुप मेंबर्स। ऐसी जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज है, जैसे सपोज काइंडनेस या फिर ये सारी, तो उसकी वजह से भी सॉलिडारिटी की फीलिंग आती है। करेक्ट है। और जैसे ये अच्छा, मैं हमारी वैल्यूज है कि हमें हेल्प करना दूसरों को, तो अभी जैसे सपोज कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी या कुछ भी आए, या फिर अभी जैसे कोविड का टाइमिंग था, तो उसमें ये हुआ था कि सब लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया था, तो उसकी वजह से एक तो ये होता है कि हमें ये फीलिंग आती है, सॉलिडारिटी की फीलिंग आती है, और दूसरी बात ये होता है कि जो ऐसी कोई मुसीबत होती है, मतलब सपोज एक ऐसी मतलब जैसे कोविड है कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे करें, या फिर अगर सपोज केवल गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करे और बाकी सब लोग इन्वॉल्व ना हो, तो शायद वो उसे ना कर पाए इफेक्टिवली। ठीक है, अच्छा, एक बार आंसर ऐसे दे ही दो। एक बर्ड आई व्यू देता हूँ। हेलो, ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वेबर और कैंट का क्या वो था सॉर्ट ऑफ रिलेशन, वेबर और कांट वाला पढ़ा होगा ना, कि कांट से इन्फ्लुएंस हुआ वेबर ने वेबर। अपना हाँ, वेबर ने अपना आइडिया वो कांट के आइडियलिज्म पे हाँ, डेवलप तो किया था। कांट ने अपनी एक फिलोसफी दी थी डियोंटोलॉजी वाली, ठीक है, अगर याद हो तो। डियोंटोलॉजी में ये बोला जाता है कि मीन्स ओरिएंटेड एक्शन होने चाहिए, ठीक है, ये एथिक्स में अपन पढ़ते हैं डियोंटोलॉजी वाले। तो यहीं पे वेबर ने कांट से इन्फ्लुएंस होके उसकी जो डियोंटोलॉजी थी, जिसमें लिखा था कि भाई मीन्स ओरिएंटेड एक्शन होना चाहिए, उसने यहाँ पे उसका कुछ नहीं है, बस मॉडिफिकेशन करके वर्ड रैशनल एक्शन थ्योरी बना दी, आइडियल थ्योरी बना दी उसने, और बोला कि मीन शुड बी ऑन बेस्ड ऑन रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड कुछ भी हो सकता है। तो बस ये थोड़ा सा कनेक्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार इनका आंसर देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। Weber saw the sociology as a study of social action. He focused on subjective meanings that humans attach to their action within their socio-historical context. आई थिंक इन्होंने इंट्रोडक्शन काफी लंबा दे दिया, मतलब डायरेक्टली हम लोग इससे इंट्रोड्यूस कर सकते थे इसके डेफिनेशन से, वर्ड रैशनल एक्शन से। इन्होंने बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डेवलप, सोशल एक्शन और फिर उनके आइडियल टाइप्स वगैरह। देन word action is oriented towards a goal or value that is defined by the society and is not by the actor. The action taken by any individual is in order to fulfill such a value-oriented societal goal. Action is rational. Thus, understanding can help us to know what a society values. फिर इन्होंने एग्जांपल्स दिया है कुछ एक सोल्जर का एग्जांपल दिया है, sacrificing his life for value like nationalism, patriotism, सेम थिंग जो मैम बोल रही थी. Then Merton's deviance show that values of economic and material success are important in American society, and even corruption, crime rate are word rational actions to attain that goal. Similarly, suicide was a word rational action in samurais of Japan after a defeat, as pride and honor were valued. Acha. Then thus, understanding of word rational action can help us identify reforms needed in the value system and introduce desirable values in it. Emphasis on values as ends thus necessitates correct values. यहाँ पे ये मर्टन की जो थ्योरी है, इसके बारे में कोई बताएगा, मतलब यहाँ पे कैसे रिलेवेंट है? मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट।
ने वो वैल्यू का डिफरेंस दिखाया है कि यूएस सोसाइटी में इकोनॉमिक सक्सेस जो है ना वो ओवर एनी कॉस्ट एक्सेप्टेबल होता है। तो उसके अच्छा लिए शायद उन्होंने ऐसा लिखा है कि वो भले डिविएंस यूज करो आप कि आप क्राइम करो करप्शन करो, बट अगर आप इकोनॉमिकली सक्सेस हो तो यूएस की सोसाइटी में वो प्रिफर्ड वैल्यू है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन पे चल सकते हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, कौन सा ये क्वेश्चन था 2 का ए, ये था ना? नहीं, ये नहीं था। कौन सा था फिर? ये तो मतलब हो चुका है ना। हाँ, ये हो चुका है। ये डरखाइम वाज टेस्ट टेस्ट 5 में था। टेस्ट 5, ओके। टेस्ट 5 का कौन सा क्वेश्चन? 4 है, 4 4, ओके। 4A। हाँ, तो क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी अंडर वेबर थ्रू हिज इंटरप्रिटेटिव अप्रोच asserted its uniqueness and distinctiveness from the physical sciences। तो पूछ रखा है कि उसकी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच जो थी वो उसमें क्या यूनिक था फिजिकल साइंसेस से। तो ये है क्वेश्चन। तो इसमें अप्रोच स्ट्रक्चर बता दो कोई, कैसे कैसे अप्रोच करते। तो इसमें हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो वेबर का इंटरप्रिटेटिव स्कूल उन्होंने जो डेवलप किया बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। एंड डिस्टिंक्टनेस मतलब इनके पहले क्या था और फिर इन्होंने क्या यूनिक किया, ठीक है। तो इनके पहले डरखाइम, स्पेंसर, ये सब आए थे, तो दे वेर मोर ऑन द लाइंस ऑफ लाइक नेचुरल साइंसेस। उनके लाइंस पे वो डेवलप कर रहे थे और सोशल फैक्ट्स की स्टडी करते थे और मैक्रो लेवल पे चीजों को एनालाइज करने का कोशिश करते थे। बट वेबर ने क्या किया, इंटरनल जो मोटिवेशन और ओरिएंटेशन, सॉरी नॉट मोटिवेशन, मीनिंग और ओरिएंटेशन जो होता है, उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने बोला कि सोशल एक्शन इज नॉट लाइक कि मतलब सोसाइटी ऊपर से कुछ बोल रहा है एंड इंडिविजुअल्स का कुछ अपना फ्री विल, कुछ ओरिएंटेशन, मीनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मीनिंग का भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि हम लोग सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ सके। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। और इसको एग्जामिन करना है अपने को। तो एग्जामिन करना है तो हम लोग इसको, इसके कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव्स देख सकते हैं। मतलब फाइनली हम लोग इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि इनके पहले जो पॉजिटिविस्ट है और फिर बाद में जो इंटरप्रेटिविस्ट, और फिर उनके इंटरप्रेटिविस्ट के वर्क पे जो फेनोमेनोलॉजिस्ट और एथनोमेथोलॉजिस्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट उन लोगों ने डेवलप किया। तो इससे हम अगर दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई करें तो सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हमारा कंप्लीट हो सकता है। करेक्ट, सही बोले सर। तो ऐसे ही करते इसको भी अप्रोच की, पहले इसका बता देते हम कि उन्होंने क्यों दिया, मतलब इंटरप्रेटिव, क्योंकि वो फिजिकल साइंसेस से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कोई सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच है, तो उन्होंने ये इंटरप्रिटेटिव दे दिया। फिर उसके बाद फिर थोड़े से पॉइंट्स डिफाइन कर देते हम इनके कि इन्होंने क्या क्या दिया था अपनी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में। 2-3 चीज़ें दी थी, जैसे वर्सेहन, आइडियल टाइप, और वो था ना कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब दिया था। फिर लास्ट में वो कंक्लूड करने के लिए हम बताते कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया था। जो वर्सेहन था ना, वो उसका तो मेन काम ही यही था कि कोई भी रिसर्चर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, वो भी सोशियोलॉजी की रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है वर्सेहन की मदद से। तो ये इनके मेथड्स में यूनिक चीज थी। दूसरा एक इनकी जो मतलब मेन पॉइंट था कि ही वांट टू स्टडी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्टिव रियलिटी। तो ये वाली लाइन मतलब वेबर के आप हर क्वेश्चन में डाल सकते हो कि ही वांट टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्टिव रियलिटी। तो ऐसे करके फिर हम लास्ट में कंक्लूड कर देते कि हाँ, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव जो सर ने आइडियल बताया। टाइप्स है ना, आइडियल टाइप्स यही है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी। हाँ, फिर लास्ट में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में आप क्या बताते कि पॉजिटिव में तो कि उनसे आगे भी फ्यूचर में भी काफ़ी, जैसे ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो मीड ने चलाया वो भी इन्फ्लुएंस हुआ। फिर नेगेटिव्स में क्या देते, काफ़ी वैल्यू लेडन टर्म्स डाल दी थी इन्होंने
मतलब फैंसी सी टर्म्स के वर्थ से हन, ये इस टाइप की, तो वो सब चीज़ें थी। वो नेगेटिव में डाल के थोड़ा क्रिटिक करके फिर लास्ट में डाल देते कि हाँ वेबर का जो था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एडिशन किया था सोशियोलॉजी में, ये सब। करेक्ट। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो बता दो। आई थिंक ये स्टैटिक ही था, इसमें ज्यादा कुछ कंटेम्पररी कंटेक्स्ट ये सब कुछ डाल नहीं सकते। इसमें मतलब थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट लिख सकता हूँ, मतलब इंट्रो में अगर चाहो तो, है ना, कि भाई ये जब जो सारी थ्योरीज निकल रही थी, ये कब निकल रही थी, जब सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, राइट। तो जब हो रहा था ना, तो उस वक्त रिलीजन से एम्फेसाइज कॉमन मैन के ऊपर आ रहा था, ठीक है। मतलब पहले डिवाइन माना जाता था रिलीजन को, ह्यूमन को कुछ नहीं माना जाता था। तो उस वेबर ने ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे काम करके इस चीज को मतलब डेवलप किया अपनी थ्योरी को, सोशियोलॉजिकल थ्योरी को। और पहले जो पॉजिटिविस्ट थे उनका सिर्फ एस्पेक्ट इतना ही रहता था कि उनको रिलीजन से एक जो इम्पोर्टेंस है वो हटानी है, ठीक है, एक साइंटिफिक अप्रोच देना है चीजों को करने का, है ना। मतलब पॉजिटिविस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए थे, है ना। वेबर एक स्टेप और आगे चला गया, उसने ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे थोड़ा फोकस कर दिया, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? वेबर के तो यही थे, दूसरे थिंकर पे चलते हैं, डर्कहाइम पे चलते हैं। हाँ, डर्कहाइम का बता दो, टेस्ट 1 में कौन सा था? ये 2 का बी दिख रहा है मेरे को, ये था ना? हाँ, 2 का बी, 1 का ये। डर्कहाइम तो आज स्किप कर रहे थे ना, वो मैम ने बोला कि कल करेंगे। अच्छा चलो वो स्किप कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। और किसका? वेबर का टेस्ट 1 में 2 का ए। अच्छा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन फिर हाँ, मर्टन ले वेबर लेते हैं। का, हाँ ठीक है, मर्टन में टेस्ट 1 का 1 का बी, टेस्ट 1 में 1 का बी। तो सोशल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ मर्टन, कौन डिस्कशन शुरू करेगा? मैं बता दूं। अच्छा पहले कोई हाँ और अगर बताना चाहे तो कुछ बताइए कि कैसे करेंगे, फिर बाकी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट मतलब सोशल स्ट्रेन थ्योरी की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं कि सोशल स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअली इट इज अबाउट सोशल स्ट्रेन कब आता है? सोशल स्ट्रेन तब आता है जब व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन द कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड सोशली अवेलेबल मीन्स, ठीक है। तो जो मीन्स और कल्चरली डिफाइंड गोल्स है, इसके बीच जब गैप आता है, देन देयर इज अ सोशल स्ट्रेन इन द सोसाइटी। और उसके अंदर वी कैन इंक्लूड दिस रेफरेंस ग्रुप, लाइक जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप होता है, बट उनके पास कुछ मीन्स नहीं होता उसको अचीव करने का। तो नाउ देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, ये जो फेमस वाला डायग्राम होता है मीन्स और गोल्स वाला, रिट्रीटिस्ट और रिबेलियन ये वाला, सो दैट वी कैन ड्रॉ। और उसके बाद सोशल स्ट्रेन थ्योरी में इंडियन एग्जांपल हम लोग बहुत सारे डाल सकते हैं इसमें, इसके रेलेवेंस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मंडल कमीशन ये सब के बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। मंडल कमीशन में जब ओबीसी रिजर्वेशन का डिमांड हुआ था, तो ये क्यों हुआ था? बिकॉज ओबीसी रियलाइज देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे अपने कैपिटलाइज करने के लिए कल्चरली डिफाइंड जो गोल्स था कि मतलब लाइक गवर्नमेंट जॉब और एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसको अचीव करने के लिए इनके पास जो मीन्स था वो अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए सोसाइटी में ट्रेन आया, उसके अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट्स हुए एंड अल्टीमेटली रिजर्वेशन मिला। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लोग दे सकते हैं सोशल स्ट्रेन थ्योरी में। और कुछ कोई और ऐड करना चाहते हैं?
फिर लास्ट में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, क्रिटिसिज्म में हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं कि मतलब क्रिटिसिज्म में कि इट इज नॉट ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, मतलब इसमें कुछ इनोवेशन भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल बी आर अम्बेडकर का एग्जांपल डाल सकते हैं, या ही वाज एलियनेटेड, मतलब एलियनेटेड नॉट एलियनेटेड, मतलब यहाँ पे उनको भी अवेलेबल मीन्स नहीं थे, बट देन ही वर्कड ऑन हिज ओन, और अवेलेबल मीन्स के अंदर ही उन्होंने मतलब सोशल मोबिलिटी अचीव की इस तरह से। करेक्ट है सर। इन्होंने भी वही किया एक्चुअली, मतलब ये CIRR इन लोग को इस सबको एक्सप्लेन किया एंड फाइनली कंक्लूड भी उतना अच्छे से नहीं किया है, बट ठीक है, चलेगा। हाँ और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? वो UPSC टॉपर, आपको कुछ बोलना था? हाँ सर, इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए, कि इससे पहले सोशल स्ट्रेन थ्योरी में पहले जो ये था कि एनोमी जो थी वो कंसिडर करते थे डरखाइम, कि वो कोई पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है और कोई पर्टिकुलर स्टेज में आएगी। लेकिन सोशल स्ट्रेन थ्योरी के बाद ये सिग्निफिकेंस हुआ कि हमें ये पता चला कि क्योंकि कुछ लोगों के पास जो मीन्स होते हैं दैट आर नॉट अवेलेबल टू अचीव द कल्चरली डिफाइंड गोल्स, तो इसकी वजह से एनोमी क्रिएट होती है सोसाइटी में। और करेक्ट। इसमें हम एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भी ये कन्फर्मिस्ट, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट के। करेक्ट करेक्ट। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? और इसमें हम सोशल स्ट्रेन थ्योरी को मतलब अगर हम चाहते हैं कि सोशल स्ट्रेन थ्योरी मतलब सोशल स्ट्रेन ना हो सोसाइटी के लिए, उसके लिए कुछ अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हाँ, लाइक मतलब वो राइट टू एजुकेशन, ऐसा कुछ, राइट टू एजुकेशन, इस तरह से हम लोग जो सोसाइटी में स्ट्रेन है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं थ्रू हाँ, मतलब राइट टू एजुकेशन। by providing minimum basic opportunity to everyone so that they can मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि वो हर जो गोल है वो लेजिटिमेट मीन से ही कर सके, और उन्हें कोई मतलब ऐसा मतलब दूसरे मीन्स ना अपनाने पड़े। और इसमें करेक्ट। ये जैसे आपने पॉइंट बताया था ना कि कभी कभी ये होता है कि जैसे इनोवेटर जो लोग होते हैं तो वो मतलब पॉजिटिव सेंस में भी कुछ चेंजेस लेके आते हैं, कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब नॉर्मली पढ़ाई नहीं कर पाते, या फिर उन्हें कॉलेज वगैरह से निकाल देते हैं और फिर वो फाइनली कोई इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ही मतलब हाँ, ड्रॉप खतरनाक आउट। लेवल पे बिल्कुल। हाँ, तो मतलब वही है कि इनोवेशन कभी कभी इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए, कि जिससे कि कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं लोग जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो लोग नहीं करते शायद, अगर उन्हें सारी चीजें मिलती तो, क्योंकि उनके पास करेक्ट। उसमें कोई रास्ता ही नहीं होता, कि मतलब डू और डाई सिचुएशन होती है बिल्कुल भी। और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है रिबेलियन, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेंज सोसाइटी में लेके आना है हमें, अदरवाइज अगर सब कुछ स्टेटस क्वो ही रहेगा और सब लोग बिल्कुल मीन्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मतलब द अल्टीमेटली तो सोसाइटी चेंज भी होती रहती है, उसकी वैल्यूज भी चेंज होती रहती है, और उसमें चेंज लाने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग रिबेलियन में भी जाएं, रेवोल्यूशनरी में भी जाएं, क्योंकि विद चेंजिंग टाइम जो वैल्यूज हुए हैं सोसाइटी की वो भी चेंज होना जरूरी है, वरना तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तब भी आएगी। तो ताकि करेक्ट। हम ग्रेजुअली चेंज करें और हम जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो बेटर हो, तो उसके लिए रेवोल्यूशनरी थिंकिंग भी इम्पोर्टेंट है, ताकि वो जो चेंज है वो वैल्यूज के साथ होता रहे। अब जैसे यही था कि LGBTQ जो मूवमेंट थी वो मतलब एज सच रिबेलियन की तरह देखेंगे ना, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है ताकि इंफ्यूजन आए सोसाइटी में। ओके, बस यही। चलो तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक। राइट। ओके, तो अगला टेस्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1E था, ठीक है? टेस्ट 5 में भी एक 1A भी है, 1A 1A। अभी। अच्छा, टेस्ट 5 1A, ये इकोनॉमिक लाइफ ये था क्या? आई थिंक नहीं दिस नहीं, और कोई बस होगा। वही था ये तो। 1E। हाँ, हाँ,
कौन स्टार्ट करेगा इसको? पहले कोई बताओ, अगर मतलब कैसे पूछ करेंगे, फिर मैं बताती हूँ। कि कोई और स्टार्ट करना चाहता है? वैसे बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें मर्टन के बता देंगे रेफरेंस ग्रुप की डेफिनेशन थोड़ी, कि उसने ये जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन थी ये रेफरेंस ग्रुप के कंटेक्स्ट में दिया था। फिर बता देंगे कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन से उसका मतलब क्या था, कि वो कि एक मेंबर दूसरे ग्रुप में जाना चाहता है और वो वहाँ पे वो फील करता है। फिर इसके थोड़े से एग्जाम्पल बताते हम, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं। फिर हम बताते कि ये कैसे पॉजिटिव है, कैसे मतलब फंक्शनल और डिसफंक्शनल कैसे है उस मेंबर के लिए। तो या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब खराब करेगा तो वो डिसफंक्शनल है। तो ऐसे करके फिर लास्ट में कंक्लूड कर सकते थे। करेक्ट। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या कोड कर सकते हैं, इस पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। सेंसिटाइजेशन डाल सकते हैं क्या, कि मतलब अपर कास्ट को इमिटेट करते हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की तरह। करेक्ट करेक्ट। वो वेस्टर्नाइजेशन भी भी ऐड। सेंसिटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों ही डाल सकते हैं, कि जो सेंसिटाइजेशन में ये होता है कि लोअर क्लास सोसाइटी जो अपर क्लास सोसाइटी की जो कस्टम्स और उनके जो मतलब उनके जो मैनर्स और बिहेवियर्स है उसे कंसिडर करते हैं, और उन्हें जो अपर कास्ट ग्रुप है उसे एज अ रेफरेंस ग्रुप कंसिडर करके उनके जो बिहेवियर है उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और उसे इमुलेट करने की कोशिश करते हैं। और वेस्टर्नाइजेशन में जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो रेफरेंस ग्रुप होता है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम इसमें वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज का भी एग्जांपल डाल सकते हैं। हाँ सर, कि अभी हाँ मतलब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बाद फिर ये भी हो गया कि उनको हम एज अ रेफरेंस ग्रुप, तो सर इसमें ये भी कंसिडर वो लिख सकते हैं ना कि डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल वो रेफरेंस ग्रुप कंसिडर करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के थ्रू उसकी जो बिहेवियर होता है, उसकी जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसे इमुलेट करने की कोशिश करता है। तो डिफरेंट सोसाइटी में जो मतलब रेफरेंस ग्रुप है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन। और तो जिस तरह की वैल्यूज है सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेफरेंस ग्रुप होगा। तो फिर अब इसमें हम ये जो एग्जाम्पल डाला ना इन्होंने कि ओपन सोसाइटी और क्लोज सोसाइटी, तो सपोज ऐसा हो कि एक ओपन सोसाइटी है तो उसमें ये है कि अगर वैल्यूज सारी वैल्यूज के लिए वो मतलब ओपन है, तो उसमें ये होगा कि अगर हम कोई और मतलब जो डिफरेंट वैल्यू है जो कि नॉर्मल सोसाइटी में नहीं है, अगर हम उस वैसा कोई रेफरेंस ग्रुप भी ले लें पर्सन का और वो इंटरनेशनली या फिर वैसे वो एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो ओपन है और हम बेटर होने के हमारे पास चांसेस है कि हम अपने क्लोज ग्रुप को रिमूव मतलब अपने क्लोज ग्रुप से बाहर निकल के और ओपन ग्रुप में आ जाए और उस रेफरेंस ग्रुप में जो पर्सन है उसकी वैल्यूज वगैरह को करके खुद को एनहेंस कर ले, अपनी जो भी सिचुएशन है उसे इम्प्रूव कर ले। लेकिन अगर क्लोज सिस्टम होगा तो ये होगा कि हम अगर ऐसा रेफरेंस ग्रुप का पर्सन लें जो कि मतलब हमारी जो क्लोज सिस्टम की जो वैल्यूज हैं उससे एग्री नहीं करता या फिर उससे बिल्कुल अलग है, कि सपोज एक लोअर कास्ट पर्सन अगर एक क्लोज सिस्टम में रह रहा है और वो अपर क्लास ग्रुप की वैल्यूज को इमुलेट करना शुरू कर दे, तो जो अपर कास्ट की सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट करेगी नहीं क्योंकि उसके लिए वो लोअर कास्ट है। और जब वो अपनी लोअर कास्ट ग्रुप में भी सॉलिडारिटी मेंटेन नहीं करेगा क्योंकि वो अपर कास्ट की वैल्यूज को इमुलेट कर रहा है, तो जो उसकी खुद की सोसाइटी है लोअर क्लास कास्ट की वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं हाँ, करेगी, तो उनके बीच मार्जिनल में मैन वाला सॉलिडारिटी कंसेप्ट। खत्म हो जाएगा और फिर देन द पर्सन बिकेम मार्जिनल मैन। करेक्ट। तो इसके कुछ फंक्शनल और डिसफंक्शनल एग्जांपल्स मतलब आप लोग सोच सकते हैं। फंक्शनल तो कह हाँ सकते हैं कि सोशल मोबिलिटी अचीव करने में हेल्प करता है। देन डिसफंक्शनल कह सकते हैं मार्जिनल मैन वाला कंसेप्ट। और कुछ कोई सोच मतलब ट्राई करिए। सर वही है ना कि जैसे कि सपोज बहुत ही ज्यादा कोई पर्सन वेस्टर्नाइज हो जाए, सपोज कोई गर्ल बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज है और
मतलब अगर वो बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न आउटफिट्स पहन रही है, कोई विलेज सोसाइटी की कोई लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होके बहुत ही वेस्टर्नली बिहेव कर रही है, तो हो सकता है कि उसे सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़े उसकी सोसाइटी में, हम्म, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी सोसाइटी के लिए। हाँ वो करेक्ट करेक्ट। अरब वर्ल्ड में है ना, क्या एक दो एग्जांपल्स है अभी यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी हाँ को याद आ रहा है सर क्या? वही ना कि वो जैसे जो वो थी सानिया मिर्जा, उनके खिलाफ भी कुछ वो फतवा मतलब कुछ वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी तो उसके खिलाफ भी कुछ, या नहीं, फिर एक्चुअली आई थिंक वो इस टाइप का एग्जांपल मतलब थोड़ा इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, दिस इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, दिस इज फॉर अ ग्रुप, दिस इज फॉर अ सोशल ग्रुप। ठीक है, तो अगर कोई एक आदमी कुछ ऐसा कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो रेफरेंस ग्रुप नहीं होता, फिर वो रोल मॉडल होता है। ठीक है, तो हम लोग को एग्जाम्पल्स ऐसे ग्रुप में सोचना है, जैसे संस्कृताइजेशन अच्छा एग्जाम्पल था, वेस्टर्नाइजेशन अच्छा एग्जाम्पल था, बट वो सानिया मिर्जा का एक्चुअली एग्जैक्टली कोट करना गलत होगा थोड़ा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ आप सही कह रहे हो, वो क्योंकि ग्रुप में हमें सोचना एग्जाम्पल। करेक्ट। और इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कोई, और वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इंडिविजुअल वाला एस्पेक्ट भी आ सकता है इसमें, तो वैसे देखा जाए तो। हाँ वही ना, वरना मार्जिनल मैन कैसे होगा अगर पूरा ग्रुप नहीं एक्सेप्ट होता है वो सिस्टम में, तो पूरा ग्रुप आपस में तो रहेगा ना। पता नहीं, हमने पढ़ा था कि मतलब ये ग्रुप के लिए था, इंडिविजुअल स्टोरीज इसमें, मतलब एक विकास रंजन सर टेस्ट सीरीज में एक आंसर को ऐसे गलत बताए थे, तो पता नहीं। अच्छा, अरे इसमें टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देख रहा हूँ मैं, मतलब देखो इसमें यही है कि अगर आप डेविएंस शो करते हो ना किसी भी चीज से, तो आप जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, एक तरीके का डेविएंस शो कर रहे हो, तो आप एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन वाले कैटेगरी में चले जाओगे, है ना। जैसे अच्छा। अभी क्या कह सकते हैं, अरब वर्ल्ड का ही देख लो यार, मतलब वहां पे एक तरीके का समझ लो कि बचपन से वुमेन्स को इस तरीके से सोशलाइज किया जाता है कि भाई बुर्का पहनना है ना, उस टाइप से। अभी तुम इसका ले लो ना, शरिया लॉ जो डाला जा रहा है फंडामेंटलिज्म को वो करने के लिए, मतलब तो वहां पे अगर कोई वुमन डेविएट करती है, ठीक है, तो दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, है ना। कोई एक इंडिविजुअल करता है, लेट्स से कोई सेलिब्रिटी ही कर गया, तो वो एक अलग ही चीज हो जाएगी। मतलब आप जिस ग्रुप के इमीडिएट मेंबर्स हो उसके कल्चर को फॉलो ना करके कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है, वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। अभी इसको तुम पॉजिटिव वे में कैसे शो कर सकते हो, मतलब ये तो सब तो, हाँ वैसे पॉजिटिव हम लोगों वे ने में बी आर प्रोग्रेसिव। अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, कि जैसे उनकी जो सोसाइटी थी वो उस वक्त ये था कि मतलब हमारा तो लोअर कास्ट है, तो हमारे को तो मतलब ये भगवान की मर्जी है कि कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो बस दूसरों की सेवा करने के लिए है, और हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, बस अपर कास्ट लोग हैं वही सबसे महान है, सब कुछ है। पर उन्होंने खुद पर बिलीफ रखा कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने इस बात को माना कि नहीं ऐसा मतलब पहली बात तो कि ये सब होता ही नहीं है कास्ट सिस्टम वगैरह, और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज पे ध्यान दिया, तो वो कंटिन्यूअसली फाइट करते गए अगेंस्ट द सोशल सिस्टम, और काफी सारी चैलेंजेस का फेस करते हुए एजुकेशन में और बाकी हर मोमेंट ऑफ लाइफ पर, और उन्होंने मतलब काफी सारे लोगों को रेफरेंस जोड़ा ग्रुप अपने किसे साथ। बनाया उन्होंने? रेफरेंस ग्रुप वही ना, जो उन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, तो जो ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ा होगा उनको। उनका रेफरेंस ग्रुप क्या था? रेफरेंस ग्रुप उनसे भी पहले भी तो कुछ लीडर्स थे ना जिन्होंने वर्क किया था सोसाइटी के लिए और जिन्होंने आगे बढ़ा था, जैसे उनसे पहले ज्योतिबा फूले जो थे वो उनसे शायद पहले थे, और उन्होंने उनसे भी काफी चीजें सीखी थी। वो रोल मॉडल हो गया ना, वो तो एक पर्सन होगा, जिससे कॉपी करते हैं हम वो ग्रुप होना चाहिए। वो जो सिद्धार्थ सर बोल रहे थे ना, विकास रंजन सर ने भी यही बोला होगा कि जिससे हम कॉपी कर रहे हैं ना वो पूरा एक ग्रुप होना चाहिए, और इंडिविजुअल कॉपी करता है। अगर मैं ज्योतिबा फूले को फॉलो करूंगा तो वो तो रोल मॉडल हुआ, वो ग्रुप थोड़ी हुआ। तो अगर सर ऐसा कुछ मतलब होता है कि ज्योतिबा फूले तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया, बट उन्होंने जैसे बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटीज के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी वेस्टर्न लीडर्स हैं जहाँ पर उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी वैल्यूज को सीखा होगा,
तो उन्हें ये समझ में आया होगा कि वहां पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में नहीं है, तो हमें भी ये सारी वैल्यूज चाहिए। लेकिन ये आएंगी कैसे? ये एजुकेशन के थ्रू आएगी, रेवोल्यूशन के थ्रू आएंगी। तो फिर उन्होंने उस पर वर्क किया, तो उसमें पूरा वेस्टर्न सोसाइटी उनके लिए रेफरेंस मॉडल हो गया, इसलिए वो लिबरल भी बने। उन्होंने देखा कि जो बाकी सोसाइटीज हैं उसमें ये सारी वैल्यूज हैं, वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। Okay. I think we should move to next question. तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है कंसेप्ट ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। दूसरी चीज पूछी है कि आर के मर्टन ने ग्रेटर सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस दिया था फंक्शनल एनालिसिस को इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी। तो ये बताओ इसमें क्या करोगे? तो कोई पहले से एक्सप्लेन करना चाहेगा? तो ऐसा कर सकते कि मर्टन जो था एक फंक्शनलिस्ट था, तो उसने जो भी अपना कंसेप्ट दिया था लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, उसको एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव से दिया था। मतलब कि जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन उसके कुछ लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन होंगे। फिर हम इसमें डिफाइन तो नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं। इसमें 20 ऐसे कर नंबर सकते का हैं, है। स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि क्लासिकल फंक्शनलिस्ट की जो थ्योरी थी ना, उसमें सॉर्ट ऑफ एक मॉडिफिकेशन करके लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट दिया मर्टन ने, ठीक है, जिसमें उसने समझाया कि कोई भी मतलब जैसे कोई भी जैसे रिलीजन है, तो उसका कुछ हो सकता है मैनिफेस्टेड फंक्शन हो, कुछ इंटेंशनल चीज़ हो, लेकिन उसका लेटेंट भी इफेक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर। साथ ही साथ उसका एक डिसफंक्शन भी होगा, ठीक है। उसने डिसफंक्शन वाले एस्पेक्ट्स को भी कवर किया था, जो कि उन लोगों ने कवर नहीं किया था क्लासिकल फंक्शनलिस्ट ने, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल सकते हैं, जैसे तुम विशाखा गाइडलाइंस का ले लो, ठीक है, जैसे जो रेप है, ठीक है, तो ये इवेंट जो है इट वाज फंक्शनल इन नेचर। थोड़ा वो क्राइम वाला एस्पेक्ट बताया था ना डरखाइम ने उधर, है ना, तो वाई इज इट फंक्शनल? थोड़ा बहुत क्राइम होना इज फंक्शनल इन नेचर बिकॉज इट हेल्प्स इन, क्या बोल सकते हैं, इवॉल्विंग द सोसाइटी। उसने एक तरीके से नहीं नहीं, लॉज ये लाए। नहीं सर, थोड़ा बहुत क्राइम इसलिए होना चाहिए ना, क्योंकि जो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो स्टर होगी जब क्राइम होगा, और वो फिर सॉलिडारिटी मतलब सॉलिडारिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि सब लोग उसके अगेंस्ट मतलब साथ में खड़े हो जाएंगे उसे मतलब हटाने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में। हाँ, सेकेंड चीज इससे एक और है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है सोसाइटी के अंदर वो हमें समझ में आएगा, ठीक है, कि अगर थोड़ा बहुत क्राइम हो रहा है तो उससे क्या फॉल्ट है सोसाइटी के अंदर वो समझ में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम हर्षद मेहता स्कैम का समझ सकते हो। भाई हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो उससे हमें ये समझ में आया कि लूप होल्स क्या थे कैपिटल मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है। हेलो, हाँ करेक्ट है। इसमें हम उसका वो वाला एग्जांपल डाल देते, होपी रेन डांस वाला, क्लासिक सा है वो तो। और और ग्रीन रेवोल्यूशन से भी कंपेयर करो। वो ग्रीन रेवोल्यूशन का बताया था ना कि मैनिफेस्टेड फंक्शन तो ये था कि भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, यही था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि भाई हमको प्रोडक्शन बढ़ाना, ये मैनिफेस्टेड फंक्शन था। लेकिन उसका अनइंटेंटेड और क्या क्या हो गया, अनइंटेंटेड फंक्शन एक तरीके का डिसफंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो गया उससे, वुमेन्स को डोमेस्टिकेट कर दिया गया,
है ना, मार्जिनल फार्मर्स जो थे वो सफ़र करने लग गए बिकॉज दे कुड नॉट टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना, वो मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। तो और वुमेन वाला तो हमने पढ़ा ही है कि भाई घर का इनइक्वालिटी काम इंक्रीज करके। हो गई। इनफैक्ट ना इससे ट्रैफिकिंग भी बढ़ गई। जो ट्रैफिकिंग है ना बंगाल से पंजाब में, ये मतलब फैमिली एस्पेक्ट्स को भी अपन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी मैरिज के लिए, क्योंकि अब पंजाब में एक्चुअली ऐसा देखा गया था कि पॉलीगैमी फॉलो करते थे वो लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि घर का काम करने के लिए कुछ है और कुछ एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। सर ये भी लिख सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि वहां पर पंजाब और हरियाणा वगैरह में रिनोवेशन था, तो वो यहाँ से बिहार यूपी से जो फार्मर्स जाते थे, मतलब जो लैंडलेस जो लेबरर्स जाते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि उनके पास जो लोकल जो लोग थे वो तो ज्यादा हाई वेजेस मांगते थे, लेकिन वो इन लोगों को इजीली एक्सप्लॉइट करके उन्हें काम पर रख सकते थे। अच्छा, सेक्स रेशियो बिगड़ गया था पंजाब का क्योंकि फीमेल फीटिसाइड देखने को मिल रहा था, है ना, हाँ। क्योंकि मेल जो मशीन से वो मेल ही चला पाएगा, मतलब एक तरीके से। तो फीमेल फीटिसाइड हो रहा था, अब फीमेल फीटिसाइड होगा तो सेक्स रेशियो डिफरेंट होगा, है ना, तो मैरिज के लिए वुमेन्स होंगी नहीं, तो ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी, है ना, मैरिज पर्पस के लिए। अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था ना, वो ये वाला पॉइंट था कि मैरिज के लिए वुमेन्स है नहीं तो ट्रैफिकिंग होती थी। ठीक है, बंगाल टू पंजाब बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा होता है ये काम। तो इस तरीके से अपन चीज़ों को जोड़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से भाई आर के मर्टन की थ्योरी ने हेल्प किया। ठीक है, यही था, मतलब वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट में थोड़ा करंट, जैसे उनकी कॉपी में भी यही चीज लिखी हुई है कि उसमें करंट एग्जांपल्स नहीं डाल रखे तो उन्होंने। अपन करंट डाल देते ना। अभी अभी करंट में तुम देखो क्या हुआ है, करंट का कौन सा एग्जांपल निकाल सकते हो? कौन सी चीज हो रही है? लॉकडाउन का ही ले लो। हाँ, लॉकडाउन का भी ले सकते हैं, मैनिफेस्टेड लेटेंट दोनों, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये सर जो एक बहुत एग्जांपल ज्यादा ये भी तो बुलडोजर है चल कि रहा है, बुलडोजर जो ये चल रहा है। लेकिन कोविड ये वाला डाला है मैम ने, कोविड की अरे वजह लिख से। सकते, सब लिख सकते। ये मैम ने डाला कोविड की वजह से, मतलब लोग तो मर ही रहे थे, लेकिन उसका मैनिफेस्ट हुआ है, लेटेंट हुआ है कि वो पीपल मोर हाइजीन करने लग गए। ये अच्छा एग्जांपल है। अभी ये जो प्रोफेट मोहम्मद वाला जो चल रहा था बहुत ज्यादा, है ना, कि कमेंट किया था तुमने, मतलब एक तरीके से रॉन्ग कमेंट करना एक कैरिज्मेटिक कैरेक्टर के ऊपर, इसके मैनिफेस्टेड और लेटेंट क्या बता सकते हो? मैनिफेस्ट अनइंटेंडेड तो बहुत फंक्शन, हो गया। मैनिफेस्टेड मैनिफ फंक्शन ये है कि मतलब अपनी कम्युनिटी को सुपीरियर दिखाना, ये दिखाना कि हमारी जो मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अदर, और हम इसलिए हमारे पास ये राइट है कि हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे यार मेरे को तो अभी तक कमेंट कमेंट किया क्या था उसने, मेरे को कोई बताएगा अगर किसको पता हो तो? मैं तो विजिट ही नहीं कर पाया। है कोई अवेयर? एक तो मैनिफेस्ट फंक्शन भी हेटरेट फैलाना ही मानेंगे ना, इसका क्या नहीं, मैनिफेस्ट उसने फंक्शन हो सकता कमेंट है? क्या किया था? कमेंट क्या किया था ये बता सकता है कोई? पता नहीं एग्जैक्टली तो। कोई है जिसे बताओ? क्योंकि इस चीज को ना बैक किया गया बाय लॉट ऑफ पीपल, जो कमेंट किया था ना कि वो सही कह रही है इस टाइप से। सर वो तो ठीक है, हर चीज ही बहक हो जाती है लेकिन जो भी कहते फिर हैं। कम्युनलिज्म हुआ, अरे वो आप वो सब स्पोक लेटेंट पर्सन है। का नाम पूछ रहे हो क्या? नूपुर शर्मा नाम था। हाँ, उसने मतलब क्या कमेंट किया था ये बोल रहा हूँ मैं। अरे वो
वो कौन उनके हदीद या कोई तो एक बुक होती है, उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि मोहम्मद ने मतलब 6 इयर्स की एक लड़की से शादी किया था और 9 ईयर में मतलब सेक्सुअल रिलेशन में थे। तो वही कमेंट था उसका। तो किसी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था उसके पहले जस्ट, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो आप बोलूंगी तो आपको कैसा लगेगा। अच्छा, ओके। सर बट यही है ना कि अगर तुम्हारे को कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसको तुम कैसे ठीक करोगे कि तुम मतलब अपने आप को ये जस्टिफाई करोगे कि तुमने ऐसा, तुम्हें इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके क्या रीजन होने चाहिए, इससे क्या नुकसान हुआ, या फिर तुम उसी का उल्टा करोगे कि उनको भी, किसी दूसरे को भी हर्ट कर दो ताकि फिर वो लोग भी लड़ें, और उसे इंसाइट करोगे कि देखो तुम में हिम्मत है तो उसे ऐसा बोल के दिखाओ। अरे इसको ना थ्रू आउट द सिलेबस थोड़ा कवर करते हुए कीवर्ड्स डालो, जैसे अपन ने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी पढ़ा है ना, वो वाले कीवर्ड्स भी लाओ इधर। पर इसमें मैंने एक एग्जांपल ये था कि इसका लेटेंट फंक्शन का कि जब राजस्थान में जब कैनाल बनी थी तो ये हुआ था कि काफी सारी वुमेन थी जिन्हें जो पहले काफी सारा टाइम स्पेंड करना था वाटर लाने के लिए, वो फिर उतना टाइम उन्हें स्पेंड नहीं करना पड़ता था क्योंकि उनको इजिली वाटर अवेलेबल था। तो ये हुआ था कि जब ये कैनाल इंट्रोड्यूस हुई थी तो काफी सारी हम्म। वुमेन का जो स्कूल्स में जो एनरोलमेंट रेशियो था वो इम्प्रूव हो गया था काफी ज्यादा, क्योंकि अब उनके पास हम्म। एक्स्ट्रा टाइम था तो उन्होंने एजुकेशन में एनरोल करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो लेटेंट फंक्शन था कि वाटर प्रोवाइड किया है लेकिन उससे एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा है वुमेन का, मतलब गर्ल्स चाइल्ड का। ओके, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है ना, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, अच्छा। फायदा हुआ। अच्छा, एक एक चीज है जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि जो भी जब लैंड ट्रांसफर करता है तो वुमन के नाम पे करता है ना। जो भी लैंड ट्रांसफर किया जाता है लैंड रिफॉर्म्स के अंडर में, वो वुमन के नाम पे ही किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम्म। मैनिफेस्टेड इंटेंशन क्या था कि वुमन को एम्पावर करना है, उसको लैंड देना है ताकि वो खुद एग्रीकल्चर करे टाइप से, है ना। बट महाराष्ट्र में ये ऑब्जर्व किया गया, जो शुगर केन के लिए जाती थी वुमेन्स, तो शुगर केन मतलब ये सब जो खेती वेती होती है उसकी, तो उसके लिए जब वो ये पूरा काम करते थे तो उसकी वजह से दे हैड टू गो थ्रू सर्जरी। क्या बोलते हैं उसका, जो वो होता है ना कि आपका यूटेरस जो होता है वो निकालना पड़ता है उन्हें, ठीक है, बिकॉज दे सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, पता नहीं किसी टाइप का कैंसर होता है या फिर क्या होता है, आई डोंट नो। बट ये तो मैनिफेस्टेड था, बट लेटेंट इफेक्ट क्या हुआ उसका मैं वो बता रहा हूँ, है ना, कि वहां पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा सफर करनी पड़ रही है ना। डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो कौन जाएगा तो। नेगेटिव नहीं हो जाएगा? अरे भाई, आप इतना डेप्थ में पढ़ रहे हो, पहले तो वही अमेज करेगा सामने वाले को। सर एक बार मतलब आप रिपीट करना ये एग्जांपल इफ पॉसिबल। अरे मतलब ये जो एग्रीकल मैं ये कह रहा था कि वुमेन्स के नाम पे आप लैंड दे रहे हो, ठीक है, हाँ। आप उनको एम्पावर कर रहे हो थ्रू लैंड, है ना, आप ये कह रहे हो कि आप एग्रीकल्चर करो। ठीक है, अब ये जो वुमेन्स है जब ये एग्रीकल्चर कर रही है, ठीक है, तो जो शुगर केन की खेती कर रही होती है तब ये पाया गया कि दिस वुमेन्स वर अंडरगोइंग सर्जरी टू रिमूव देयर यूटेरस। ठीक है, दे वर रिमूविंग देयर यूटेरस, ठीक है, वाई? because they were going through some sort of medical issues, I would say, I think कुछ यार कैंसर वाला एस्पेक्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा अरे वो स्पेसिफिकली बट। ऐसा कुछ था कि वो पीरियड्स वगैरह पे काम नहीं कर सकते थे, तो हाँ, काम कर सके उसके लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। हो सकता है ओके। अच्छा। यार। तो वो वुमेन्स मतलब आर गेटिंग एग्रीकल्चर देयर लेबर तो वोम्स में वुमेन डाल दूं क्या हमेशा ये? से है ना, तो यूट्रस मतलब आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा की प्रॉब्लम होगी कि यूट्रस निकालना पड़े। हाँ तो देखो, हाँ यहाँ पे ये है कि वुमेन जो है अपने वोम्स इसीलिए निकाल रही है टू इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी एंड टू अवॉइड डेली वेज लॉस। ठीक है, तो ये तो आप बहुत चीजों से तुम कनेक्ट कर सकते हो। सर इसमें तो एक वो भी डाल सकते हैं ना कि जैसे एमटीपी के लिए जो बिल आया था उसमें ये था कि हम्म। वैसे तो वो वुमेन को बेनिफिट ही कर रहा है कि मतलब अगर प्राइवेट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अगर उसमें भी एमटीपी
तो तुम इसको या ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर वाला पॉइंट है ना, कि भाई फॉर्मल सेक्टर के बेनिफिट्स, इनफॉर्मल सेक्टर के डिसएडवांटेजेस। ये जो एग्रीकल्चर कर रही है वोमन, वो तो एक इनफॉर्मल सेक्टर है ना। तो यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपके जो